नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हार्दिक अभिनंदन व आभार प्रकट करती हूँ। मैं नंदिता प्रकाश, लेक्चरर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर से हूँ। यह छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आज मैं अपनी बात का आरंभ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रचना से करती हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसी जोश और जज्बे के साथ भरी छात्राओं व उनके विद्यालय से आज आपको मिलवाएंगे। छात्राओं से तात्पर्य आज हमारा बालिका शिक्षा से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब एक बालिका को शिक्षित किया जाता है तो वो शिक्षित समाज का निर्माण करती है। एजुकेट अ गर्ल, एजुकेट अ नेशन। हम जानेंगे आज कि कैसे समाज में कुछ बेहतर और कुछ नया किए जाने का प्रयास हो रहा है, जहां एक सामान्य जनसाधारण सोच है कि केवल बड़े और अंग्रेजी माध्यम के पाठशालाओं में ही सफलता की राह तय की जाती है। इससे इतर कैसे एक सामान्य सरकारी हिंदी माध्यम पाठशाला की छात्राएं नित नए आयामों को छू रही हैं, नए नए कीर्तिमानों की स्थापना कर रही हैं। और आखिर क्या विशेष है इनके विद्यालय और इनके शिक्षकों के प्रयासों में जो यह सब कुछ संभव हो पा रहा है। साथ ही आज हम मिलेंगे इस विद्यालय की प्राचार्य राज्यपाल पुरस्कार सम्मानित श्रीमती संगीता सिंह बघेल मैडम से, जो कि ये हमेशा कहती हैं कि हमारी शिक्षा केवल शिक्षित करने के लिए नहीं अपितु हमारी छात्राओं के स्वावलंबन के लिए होनी चाहिए। तो जब हम उन्हें स्वावलंबी बना ले शिक्षित करने के साथ, तब जाके हम अपने काम में सफल हुए और लक्ष्य पूरा हुआ समझें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, छात्राओं से मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे उनके विद्यालय का उनके जीवन में योगदान है। Hello everyone, my name is Sandhya Chauhan. I am pursuing BSc in Microbiology from Government VYT PG Autonomous College Durg. I have completed my schooling from Government Girls Higher Secondary School, Vaishali Nagar. Today I am here very fortunate that I have got the opportunity to say something about my school. I would say that the school timing is very precious to me. I think it is not only for me but for everyone's life. School time is very important and best time. I feel very proud that I had been a student of this school. Teachers are very supportive and caring. The profession of teaching is very important in our society, because if there is no profession of teaching, then any other profession would not exist. This school provide a good platform for all the students who are studying in this school, and this is all possible because of our respected principal ma'am, who is the source of inspiration and all the positivity in the school. When a child joins the school, in starting the child is like a blank paper, but gradually they grow up with knowledge, not only bookish but behavioral also. The same thing happened to me. In starting I didn't even have any goal in my life, but after spending some time in the school and I give time to my studies, I could able to decide my goal. And I want to mention one thing, that in the first year of my college I came to know about a Inspire scholarship. I applied and I got selected for this scholarship, and this scholarship is really very helpful for my career. I am very thankful to the school for making me self-reliant so that I can take my own decisions of career and my life. Thank you. Hello everyone, my name is Vandana Maurya and I am currently pursuing BTech Honours from Sri Shankaracharya Professional University. Today I am going to share my life journey with you. I believe that everyone has a turning point in their life, and getting admission into Government Girls Higher Secondary School Vaishali Nagar is turning point for my life. Firstly, I thought that this is a government school, it will not provide me that platform to explore my skills, to explore myself. But I was wrong. I found it very progressive, and then I realized that it will not only give me knowledge but also give me the confidence to live life with confidence.
In class 9th, I got selected in quiz competition organized by Avrat Education Society. Here, it comes the huge role of our principal madam. She not only boosted my confidence but also provided me the best guidance to win this competition. I got consolation prize in this competition. In continuation with this, in class 10th, me and my classmate represented our school at state level in science quiz competition. In class 11th, we won the second prize in Bharat Ko Jano competition at block level. After that, in class 12th, COVID came. All colleges and schools get closed. In spite of these difficulties, our school and our principal madam provided us best facilities as she can. After my 12th, I got 2 scholarships, namely Foundation for Excellence Scholarship and Legrand Scholarship for pursuing my engineering degree. It's now almost been 2 years I am pursuing my BTech honors from Sri Shankaracharya Professional University. This school not only gives me the goal for my life, but also teach me how to present yourself in front of others, how to be confident in every difficult situations. One thing I have learned from here, that my background will not affect my success, but my knowledge and confidence will decide my success. थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुरभि देवांगन। आप सभी को मुझे यह बताते हुए गर्व होता है कि मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की छात्रा थी। कक्षा 8वीं में जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तब मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था। फिर जब मैंने लगातार स्कूल जाना शुरू किया तो मुझे स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। वहाँ बहुत से मेरे नए नए फ्रेंड बने, मुझे टीचर्स अच्छे लगने लगे। फिर वहाँ पे पढ़ाई करने में मज़ा आने लगा। कक्षा 10वीं में मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, मार्शल आर्ट ताइक्वांडो। मैंने स्टेट और नेशनल ओपन टूर्नामेंट खेला जिसमें मुझे सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। कक्षा 11वीं में कोविड के कारण स्कूल बंद हो गए। हमें हमारी पढ़ाई में रुकावटें आने लगी। हमें बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मैंने अपने पापा को भी खोया, लेकिन हमने अपना पढ़ाई ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जारी रखे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम में हिस्सा लिए। कक्षा 12वीं में BECT के द्वारा फिनिक्स इंस्टीट्यूट में 3 महीने का हमने कोर्स किया, जिसमें रचनात्मक और कलात्मक शक्ति का हमें अनुभव हुआ और मैंने यह तय किया कि मुझे इसी में करियर बनाना है। और आज मैं फिनिक्स इंस्टीट्यूट में 2nd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं यह कहना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय ने हमें स्वावलंबी बनने का राह दिखाया। ऐसा सिर्फ मेरा विचार नहीं, हमारे विद्यालय के सभी छात्राओं का यही विचार है। शिक्षा तो सभी विद्यालयों में दी जाती है, परंतु हमारे विद्यालय में शिक्षा के साथ जीवन की राह भी दिखाई है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम निकिता सिंडे है। मैं कक्षा 12वीं गणित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला वैशाली नगर की छात्रा हूँ। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल की छात्रा हूँ, परंतु मैं आप सबसे यह बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल एक सिर्फ हमें शिक्षा ग्रहण करने का प्लेटफॉर्म नहीं होता, जबकि हमारा आत्मनिर्भर बनाने का भी एक प्लेटफॉर्म होता है। हम अपने आत्मनिर्भर के साथ कई राज्य स्तरीय एवं स्तरीय प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। नमस्कार, मैं आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम निशा चौहान है। मैं कक्षा 12वीं की स्टूडेंट हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी पढ़ाई कर रही हूँ। हमारे स्कूल ना केवल हमें स्कूल की शिक्षा स्तर, बल्कि हमें अपने भविष्य में आगे जाके करना क्या है और हमारे करियर रिलेटेड बहुत सारी जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हें कैसे फाइट करना है, इन सभी का मार्गदर्शन हमें हमारे स्कूल द्वारा दिया जाता है। हमारे स्कूल में हमें सारी सुविधाएं प्राप्त है। हमारे स्कूल में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। किसी भी स्टूडेंट को कभी भी कोई भी बुक्स की ज़रूरत होती है, वहाँ सबके लिए अवेलेबल होती है। साथ ही साथ हमारे स्कूल में एक बहुत अच्छा अटल टिंकरिंग लैब है। वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और हमारी प्रिंसिपल मैम का कहना ये है कि प्रोजेक्ट्स केवल ना सिर्फ एक नमूने के रूप में वहाँ रखा हो, बल्कि हम उसका उपयोग करें। इवन हम अपने स्कूल में उसका यूज़ करें, तभी हम बाहर भी उसका यूज़ कर पाएंगे। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की प्राचार्य श्रीमती संगीता सिंह बघेल। आज मुझे आप लोगों ने ये अवसर दिया अपनी शाला की उत्तरोत्तर होती प्रगति के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए।
मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। मेरी ये शाला जो है वो एक कन्या शाला है। शाला में अध्ययनरत 550 कन्याओं की आशा भरी नज़रें मुझ पर टिकी रहती हैं कि मैं उनके लिए हर दिन नया क्या कर सकूं। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अपने साथी शिक्षकों के सहयोग से कि कोई दिन ऐसा ना चूके जब उनको नया कुछ सीखने का अवसर ना मिले, चाहे वो शैक्षणिक गतिविधियाँ हों, चाहे वो सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद की गतिविधियाँ हों। जब भी जो अवसर हम अपने शाला की कन्याओं को मुहैया कराते हैं वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करती हैं और उनका यह प्रदर्शन ही अगले आने वाले समय के लिए मुझे प्रेरित करता रहता है कि और मैं बेहतर इनके लिए क्या कर सकूं। हमारी शाला की कन्याएं शैक्षिक गतिविधियों में भी जिले में टॉप 10 की सूची में उनका नाम रहता है। 90% प्राप्त करने वाली लड़कियां जो हैं वो न केवल 12वीं और 10वीं में भी रहती हैं और 12वीं में भी। इसके अलावा वो ही बालिकाएं खेलकूद से या अन्य गतिविधियां जो हम करते हैं साहित्यिक और सांस्कृतिक, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। मेरा ये मानना है कि शिक्षा केवल शैक्षणिक गतिविधि ही नहीं होती बल्कि एक व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। और इसी विजन को लेकर मैं चलती हूँ कि ये जो संपूर्ण उनका चहुमुखी विकास जो हो उससे उनमें आत्मविश्वास आए, क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है, आत्मविश्वास लाना और समाज के लिए कोई उपयोगी नागरिक बनकर अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर बनना। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी शाला में ऐसी भी बालिकाएं हैं जो फिनिक्स इंस्टीट्यूट से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हुई और उनका ये दूसरा साल है। उसमें से कई बच्चियों ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स और अभी तो इंटीरियर का कोर्स भी उन्होंने सीखना शुरू किया है। जो सीख चुकी हैं वो आत्मनिर्भर भी हुई हैं और यह बात जब मैं जानने लगी हूँ कि वो आत्मनिर्भर होकर कितना आत्मविश्वास के साथ अपना कार्य कर रही हैं, तो ये मुझे बहुत बहुत सुकून देता है और आगे ऐसे ही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे भी बहुत सारी बच्चियां हैं जो न केवल जिले और राज्य स्तर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलकूद प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ी हैं और अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो इनके इवेंट्स होते हैं उसमें उन्होंने स्थान प्राप्त किया है। हमारी शाला में एनसीसी भी इस वर्ष से शुरू हुआ है, जिसमें बालिकाएं बहुत उत्साहपूर्वक शिक्षिका मार्गदर्शन में सीख रही हैं और उनका बेहतर प्रदर्शन न केवल बाकी बालिकाओं को प्रेरित करता है कि आने वाले साल में वो भी एनसीसी में जुड़ें और देश की सेवा के लिए तत्पर रहें। अभी हाल फिलहाल में हमारे शाला की 2 बालिकाएं ट्विंकल शर्मा और शैलू दलाई राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा आयोजित भारत को जानो प्रतियोगिता में भाग लिया उन्होंने, जहां पर देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए कई सारे प्रतिभागियों से उनका सामना हुआ। कड़ी प्रतिस्पर्धा थी और प्रश्नोत्तरी के इस कार्यक्रम में उनका टाई हुआ 3रे स्थान के लिए और वो पंजाब से वो टाई में पिछड़ गई बजर राउंड में और वो 4था स्थान प्राप्त किया। ये सारे क्षण जो हैं, हम जो एक प्राचार्य के रूप में मैं और मेरी जो पूरी टीम है शिक्षक शिक्षिकाओं की, इसके हम सब के लिए ये अत्यंत ही गौरवशाली क्षण होता है जब एक सरकारी स्कूल की शाला की जो छात्राएं हैं, अलग अलग विभिन्न परिस्थितियों से आई हुई, जिनके लिए स्कूल एकमात्र ऐसा आधार होता है जहाँ पर वो अपने अंदर की प्रतिभा को और बाहर ला सकती हैं, वो जाहिर कर सकती हैं दुनिया को कि उनके अंदर में भी बहुत कुछ गुण हैं छुपे हुए, बस उसको निखारने की ज़रूरत है। और हमारे शाला में ऐसी बच्चियाँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहती हैं, उनके लिए भी उनको पुस्तकें लाइब्रेरी में उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसका वो पूरे साल भर इस्तेमाल करती हैं। और 1-2 बच्चियाँ हैं जो पिछले साल नेट के परीक्षा में सफल हुई और हमारा प्रयास आगे जारी ये है कि हम उनको और संख्या बढ़ाएं। ये जो दिमाग में बैठा हुआ है कि सरकारी स्कूल की बच्चियाँ ये
कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं असफल हो जाती हैं, हम इस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं। अक्टूबर के माह से ही हम इनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी लगाते हैं, जिससे इनको वहाँ से मदद मिल सके और ये अपना जो पढ़ाई लिखाई में इनको एक आलंबन मिल सके। बहुत सारे इसके अलावा जो हमारे शाला में अटल टिंकरिंग लैब है, जिसमें सत्र भर से वहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जो हमारे टीचर इंचार्ज हैं उनके मार्गदर्शन में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और इन प्रोजेक्ट्स का उपयोग हम ये सोचकर उनको बनाने के लिए प्रेरित करते हैं कि जो बनाए गए प्रोजेक्ट्स का उपयोग शाला में ही हो, केवल वो डेमो के लिए वहाँ प्रोजेक्ट्स ना रखे जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और ये सब का श्रेय मैं इन बालिकाओं को देती हूँ, क्योंकि अगर ये बालिकाएं जिस प्रकार का मेरा विज़न है उस पर ये खरी नहीं उतरती, ये उस तरह से मुझे वापस रेस्पॉन्ड नहीं करती, तो शायद हम भी उतना प्रयास करने में थोड़ा चूक जाते। लेकिन जितना मेरा प्रयास रहता है इनको आगे महत्व देने का, अवसर देने का, उससे कहीं अधिक मुझे इनसे रिस्पॉन्स मिलता है। और मैं और मेरी टीम, शाला की पूरी टीम लगी है कि किस प्रकार हम शासकीय कन्या वैशाली नगर की छात्राओं को इतना आगे बढ़ाएं कि ये न केवल हमारे ज़िले में बल्कि प्रदेश में भी हमारी शाला का नाम रोशन हो। धन्यवाद। विद्यालय की छात्राओं एवं प्राचार्य मैडम को सुनने के पश्चात अब इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम मिलते हैं अटल टिंकरिंग लैब के इंचार्ज श्रीमती रितु हांडा मैम से, जिनसे हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में छात्राएं क्या और कैसे कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तत्पश्चात हम खेलकूद के विषय में जानकारी लेंगे अरुणा बनाइत मैडम से और एनसीसी के माध्यम से विद्यालय में जो डिफेंस सर्विसेज की तैयारी बच्चों को कराई जा रही है उसके विषय में भी जानेंगे। यहाँ बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारी प्रिंसिपल मैडम के मार्गदर्शन में एनसीसी का कार्य मेरे द्वारा संभाला जा रहा है, जहाँ मैं एनसीसी के ऑफिशियल और एजुकेशनल सेक्टर को डील करती हूँ। वहीं पे हमारे अंजय सर के द्वारा फिज़िकल ट्रेनिंग छात्राओं को दी जाती है। नमस्कार, मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से रितु हांडा यहाँ पर संचालित अटल टिंकरिंग लैब के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। यहाँ की छात्राएं सेंसर का प्रयोग कर, कोडिंग कर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स बनाती हैं। प्रोजेक्ट्स केवल लैब में ही नहीं सीमित हो जाते, वो इनका प्रयोग जहाँ पर भी हमको इनकी ज़रूरत होती है वैसे प्रोजेक्ट्स बनाकर, मॉडल बनाकर उसका उपयोग किया जाता है। 30 छात्राओं द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर 8 प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जो ट्रेनर्स के द्वारा सिखाए जाते हैं और बच्चों की सहभागिता रहती है और सेंसर का प्रयोग और कोडिंग बखूबी निभाती हैं। मैं अरुणा बनाइत कन्या शाला वैशाली नगर व्यायाम शिक्षिका हूँ। यहाँ पे अलग अलग गेम्स में एक्टिविटीज़ होती हैं। दैन बहुत सारे बच्चे जो है अपने राज्य स्तरीय और ओपन नेशनल स्तर पे भी यहाँ पे अपना प्रदर्शन दिए हैं और साथ ही पोजीशन भी प्राप्त किए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन प्राप्त हुआ है। हमारे स्कूल की प्राचार्य मैम, जिनका बहुत समय पे हमें प्रेरणा मिलती है और बच्चों को भी उत्साहित किया जाता है, जिससे कि बच्चे अच्छे लेवल पे प्रदर्शन अपना दे पा रहे हैं। चाहे आर्थिक हो जाए, किसी भी परिस्थिति में मैडम बच्चों के साथ रहती हैं और उनका फुल सपोर्ट दिया जाता है, जिससे कि बच्चे अपना प्रदर्शन कर। हमारे स्कूल की शीतल कुशवाहा जो क्लास 9th की छात्रा हैं, उसका सिलेक्शन खेलो इंडिया में हुआ है। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। साथ ही साई का जो प्रशिक्षण के लिए जो उसका सिलेक्शन भी हुआ है और काजल और रिम्पल ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने नेशनल में अपना स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ क्रिकेट का प्रशिक्षण चलता है। क्रिकेट में यहाँ पे 8 से 9 छात्राएं जो हैं उन्होंने स्टेट लेवल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी ली हैं और उनका पोजीशन भी प्राप्त हुआ है। सेकंड और थर्ड पोजीशन प्राप्त करते हुए इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अंजय कुमार त्रिपाठी है। बच्चों को यहाँ पर एनसीसी के माध्यम से भारतीय सेना के लिए शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है और इसमें मुख्य रूप से मैं बच्चों को यहाँ पर ड्रिल की ट्रेनिंग दे रहा हूँ
और बच्चों को इसके माध्यम से यह सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अपने शरीर को किस तरीके से फिट रखा जाए और किस तरीके से अपने जीवन के हर पहलू में कामयाब बना जाए। उसी का एक माध्यम है ड्रिल, उसी को हम यहाँ पर अभी सिखा रहे हैं और आगे जीवन के लिए बच्चों को बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। पीछे लौटेगा, पीछे मुड़, दो तीन, आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़, दो तीन, तीन में दाहिना चलेगा, दाहिना मुड़, दो तीन, दाहिना सब, चल, पीछे मुड़, एक दो तीन चार, आज इस वार्ता का अंत मैं हमारी सम्मानीय प्रिंसिपल मैडम के बिहाफ में कुछ बोलकर करना चाहती हूँ। मैडम हमेशा कहती हैं कि कुछ विशेष सफलता अर्जित करने के लिए हमें विशेष कार्य करना होता है। हम ड्यूटी टाइम अर्थात समय बंधन में रह के विशेष सफलताओं को अर्जित नहीं कर सकते। जब हम कुछ आगे बढ़कर करेंगे तभी कुछ आगे सफलता भी अर्जित होगी। आज के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और इसी प्रकार हम समाज में होने वाले नव निर्माण के किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।